Okay, so this is second year. We are going to have a discussion about the surgical topic today, and my name is Dr. Usman Khan. I'm working as a senior registrar in Surgical Unit 1 in Avicenna Medical College and Hospital. And this is probably my first interaction with you. And today, oh, okay. इसको साइड पे कर ही दें बोल के रहने दें साथ हाँ वो चैट साइड पे नज़र नहीं आ सकता मुझे उसको साइड पे कर दें कि नज़र आती रहे इसको नहीं साइड पे इसे हाँ इसको हाँ चैट को तो साइड पे कर दें भाई कुछ वो पूछे तो मुझे पता चल जाए ये जाती नहीं चुप हाँ अब ले जाए तो कोई बात नहीं हाँ चलें कोई नहीं यहाँ पे आ जाएगा ये ऑप्शन आ जाएगी मैसेज की चैट पढ़ लेना वो बाद में कर लेंगे बिल्कुल वो तो अभी तो लेक्चर ही डिलीवर करना है वो आपको पता चल जाएगा जैसे Okay, second year. Sorry for the interruption, unnecessary delay because we're all new to whatever is happening here. This online system, some people advocate it, others, there have been papers in certain countries that the system of this online teaching has failed because the interaction between the student and the teacher, the eye contact, your being presence, and the comfort level of being communicating while you are seeing and while you are eye contact, you're having an eye contact, lip reading, it all matters a lot. But according to the special circumstances and dire circumstances, we have to take dire measures. So here we are, boys and girls. So the topic is peritoneum. It's a dry topic concerning surgery, and perhaps when you become a surgeon, only then the anatomy of the peritoneum, omentum, and that of the mesentery becomes very clear to you. Before that, it is very difficult to ascertain what it is. So, what? So, regarding the origin of the peritoneum, how does it arise? Remember, epithelium starts with E. So, epithelium is endothelial in origin. And this mesentery is mesodermal in origin. This mesentery, peritoneum, and the reflections, these are mesenteric in origin. Peritoneal cavity starts from the mesothelium. As we discussed, it has, it arises from the mesothelium. It has two linings, the inner and outer one. And as the abdominal cavity increases, the mesothelium becomes invaginated into the abdominal cavity and resulting in the creation of the largest cavity in the body, which contains many, many vital organs and structures. So the largest cavity in the body is the peritoneum. And in an adult male, it is postulated that it has a capacity, it has an area of 2 meters square in an adult. And it is almost equal to that of, nearing that of skin, and skin being the largest organ in the body. So that is the largest organ. This is peritoneum is the largest cavity in the body. So it's over here, if you can see the picture in the first diagram on your left, you can see the liver, and the apron-like thing hanging down from the liver is the lesser omentum. And on the right-hand diagram, you see the picture, the curvature of the stomach, and the apron-like structure hanging from the greater curvature of the stomach is the greater omentum. And then if you come lower than the greater omentum, along the intestines, you see radiating membranous structure, which is the mesentery, which contains the vital, which are two reflections of the peritoneum. And in between are sandwiched, mostly are the blood vessels supplying, which blood supply of the mesentery, supplying the adjacent structures and all of the gut. And coming to the anatomy of the peritoneum has two layers. The outer one is the parietal layer and inner one is the visceral layer. These two, although it is the largest cavity, but it doesn't have too much of fluid. The fluid keeps on being absorbed, and only slight amount of scant fluid is between these two layers for the easy gliding and
uh, gliding of structures and viscera on one and each other and over this membranous structure. The membrane, as we said, is composed of parietal, which is towards the outer side, and visceral peritoneum, which is towards the inner side. These are the two reflections. And it is composed of cells which are polygonal in shape, and they're flattened cells. And usually that it is only a cell membrane thick, a single cell layer thick. And it is held together by a very fine and uh, non-dense kind of fibrous structure, which also contains the blood and blood vessels, and this fibrous structure runs just below the peritoneum. And the functions of the peritoneum. What are the functions of the peritoneum? Okay, everything has to have a function, right? It's the biggest cavity containing many organs, so it has to have a vital function. The main function is pain perception, visceral lubrication, as we discussed earlier, that it helps in the sliding of one viscera and the sliding of one membrane on the other. Fluid absorption, a little fluid that gets extravasated in it, can be absorbed, and it has got a very large absorptive surface, and it can absorb large amounts of fluids. And on the other end, if anything goes wrong with this, it can also result in leakage of large amount of fluids. Fluid absorption and inflammatory response. As we said, the peritoneum is lined with a good capillary network, and the peritoneal fluid aided by the capillary attraction, and all these things, it helps in the inflammatory response. And the apron-like structures we discussed about, which were hanging from the liver, the lesser momentum, and from the greater curvature of the stomach, which was the greater momentum previously, as we discussed, they are also known as the policemen of the body, of the abdominal cavity, in the intraperitoneal policeman. Whenever there is an infection in the peritoneal cavity, these momentum tend to go towards that infection and try to seal off that infection, localize it, and as it is rich in blood supply, though, so it also affects in fighting that infection by inflammatory response, and it also has fibrinolytic activity. So we've done that. It has pain. It has pain perception. The pain being the parietal peritoneum, the outer covering, is more sensitive to pain, and it is more sensitive in help us in localization of the pain. And the visceral peritoneum, which is the inner lining, it is usually it also has pain receptors, but it usually is not that well uh, localized to an area. You cannot point out the internal layer usually gives the feeling of an entire general abdominal pain, central abdominal pain, or vague. You cannot put a hand on it and you tell exactly this is the place where I'm having pain. But other than that, in case of parietal peritoneum, it is the 2 point discrimination is pretty good. So an example is that when a patient has acute appendicitis. Okay, acute appendicitis is what? Acute appendicitis is infection of the appendix, inflammation of the appendix. So inflammation, it is appendicitis, and you can tell the patient comes to you with pain in right iliac fossa. The pain was initially generalized, then it shifted towards the right iliac fossa, and now he can like localize it and put a finger to it and point out where the problem is. So peritonitis. What is peritonitis? Peritonitis is invasion of the invasion of the peritoneal cavity by inflammatory cells, which leads to inflammation of the peritoneum, resulting in peritonitis. Wherever, as a general rule, wherever there comes itis, itis, appendicitis, colitis, cholecystitis, gastritis, tonsillitis, all these, what do they represent? Inflammatory response in reaction to an infection. Usually it's the infection which causes these inflammations. So whenever you have peritonitis, gastroenteritis, appendicitis, cholecystitis, tonsillitis, all these point out towards the usually the bacterial inflammation of that particular area, which results in the inflammatory response. And
The causes of peritonitis. What can cause the irritation and inflammation of the peritoneal membranes? So usually, as I told you, it's the bacterial infection, and it can also be chemical injury. For example, chemotherapeutic agents which are instilled sometimes in the peritoneal cavity as therapeutic agents, or another example is when you have biliary leakage. Gallbladder, you have an empyema, the gallbladder wall is friable, it is inflamed, and it bursts, leading to spillage of the bile fluid in the peritoneal cavity. It will be freely, and wherever it comes in contact with the peritoneum, it causes irritation, which is due to the salts and the acids found in it, which result in direct chemical irritation leading to peritonitis. Then ischemic injury. When, as we mentioned earlier, that the mesentery, which holds the bowel and provides the blood supply to the walls of the bowel, and it is extensive network of blood supply. If this becomes obstructed due to any hemorrhage or due to a clot, which does not let the blood propagate any further, so it will. Hello, can you hear me? Okay, sir. Audio? Okay, I don't know how much we've missed, but coming to peritonitis again, bacterial peritonitis was a most common cause. Where do the bacteria come from to cause infection in the and inflammation and sepsis in the peritoneal cavity? Obviously, the structure which are adjacent to it. From internally, the peritoneum contains gut loop starting from the stomach, esophagus, duodenum, ileum, large gut, small hole of the small bowel, and large bowel. So, the most common organisms are in from the GI gastrointestinal source. They are the E. coli, the streptococci, staphylococci usually come from the skin, bacteroids, Clostridium, Clostridia species, Klebsiella, and Staphylococcus. So it can be mixed aerobic and usually aerobic, anaerobic, gram-positive, gram-negative. It can be a mixed infection, and it can be a mixed infection either. And other are chlamydia, trachomatis, gonorrhea, beta hemolytic streptococci, pneumococci, and even Mycobacterium tuberculosis. They are all sources of. So wait, please, there is something else going on. Yeah, I don't know. Yeah, yeah. Excuse me. I'll just. Yeah, routes of infection from the gastrointestinal tract. It can be due to gastrointestinal perforation. The gut was inflamed, the wall of the intestine was inflamed, it got burst open, and there was structural abnormality or weakness in the wall, resulting in leakage of the fluid and the bacteria and all the acids and the mucus and all the secretions which are supposed to be inside the lumen of the gut, whether it's small intestine or large intestine.
pours out of this pours out and into the peritoneum, resulting in peritonitis. The example of gastrointestinal perforation is perforated peptic ulcer, perforated duodenal ulcer. Okay. Then I said again, the perforation or the injury can be through internal like gastrointestinal and can come from outside exogenous source. Like you are operating, you open up the tummy, open up the intestines, and there is leakage and there are chances of spillage. And then pelvic diseases, certain pelvic diseases, pancreatitis, certain organs which become infected can also lead to inflammatory exudation into the peritoneum, leading to peritonitis, like pancreatitis, in which there is infection and inflammation of the pancreas, maybe due to bacterial reasons, maybe due to alcohol, maybe due to or other iatrogenic reasons or unknown reasons. There is spillage of the digestive enzymes and the hormones and the lipases from the pancreas into the peritoneal cavity, resulting in peritonitis, which is called transmural translocation. In this case, as the bacteria shift from inside the membrane containing cavity into the outside, into the peritoneum. Then infection, the sending infection from usually from in females, it is common from the female genital tract. You can pelvic inflammatory disease. You have inflammation there, and it ascends to at the peritoneum is lying adjacent on the inside in the abdominal cavity, and it can uh, extend and spread and cause a peritonitis. And then hematogenous spread. We have talked about bacteria coming from intestine. We have talked about coming from other organs. We have talked about bacteria coming from their genital tract, like ascending infections. And then there can be bacteria and inflammation and sepsis from blood-borne infections. When you have infection of anywhere in the body, it can be an abscess in the leg or the foot. It can be sore throat. It can be frank septicemia, where the patient is in septic shock. So it means the infection and the noxious agents from that source can come into the bloodstream, and then via the bloodstream they can travel all over the body, and wherever they get lodged or get the opportunity, they cause inflammation and leading to infection. So when this happens to the peritoneum, it is called peritonitis through hematogenous spread. Okay, so we discussed what is peritonitis. Inflammation due to infection of the peritoneal membrane is called peritonitis. And we discussed again, it can be localized or generalized. In localized, the examples are subphrenic abscess and the pelvic abscess. Subphrenic is the area just below the diaphragm. Usually, it tends to accumulate, the localized abscess tends to accumulate between the diaphragm and the liver. It is below the diaphragm, above the liver, and resulting in a subphrenic abscess. Or there can be collection into the pelvic cavity. Number one, if you can see in the left side of the diagram, number one is the area for subphrenic abscess. Number four, whenever there's inflammation of the peritoneal cavity, usually the fluid trickles down and it tends to get accumulated in the dependent areas. So in the dependent areas, which areas are the dependent areas? Obviously, the pelvic area, when the person is standing or lying, it is usually this area which is under hydrostatic pressure. So outpouring of fluid into it results in peritonitis. The omentum is the policeman, like I told you, it is hanging like an apron from the liver. The lesser omentum and the greater omentum, which is hanging from the greater curvature of the stomach. So these are freely hanging policemen. They're attached to their base with these structures I told you. And wherever there is an infection, the omentum tries to go towards that region and spreads itself and engulfs it, trying to ward off or localize that infection. But if this attempt fails, then it results in generalized peritonitis, which is can be early peritonitis or late. It spreads to whole of the abdomen, and it usually depends upon the severity and the virulence of the organism, how nasty the organism is, being whether it is an bacteria, virus, or any chemical agent, noxious agent, and what is
the level of disruption it has called to the peritoneum in that localized area. So the amount of destruction caused, the amount of the contamination load, the condition of the patient. If the, for example, if the patient is already having long-standing diabetes, if he's having a long-standing liver disease, if he's having long-standing kidney disease, then his immunity is bound to be low. So the infections, these infections, apart from that, the opportunistic infections, they also get a chance to play the havoc. And usually in such immunocompromised patients, the peritonitis is more frank, more generalized, early in onset, and it is more in severity. Then there is a thing known as spontaneous. I hope you can, guys, you can hear me. I don't know if you can, but spontaneous versus secondary peritonitis. Okay, we know now what peritonitis is, what causes it, what are the two types, localized in general. And then we come to the spontaneous peritonitis and the secondary peritonitis. These are two types. What is spontaneous? Spontaneous is filbadi, जिसको उर्दू में नहीं कहते. Spontaneous means it happens on its own. It comes spontaneously, right? And it is, so it means that a spontaneous infection developing within the peritoneal cavity results in a collection of the fluid, or the fluid which is already there, it may get infected, resulting in spontaneous peritonitis. And usually it is called spontaneous, it is usually spontaneous bacterial peritonitis, SBP. Whereas in secondary peritonitis, you have to have, in this secondary peritonitis, you have to have a cause. Usually develops when there is an injury or infection in the abdominal cavity or one of the organs which are contained in the abdominal cavity, which allows the infection to seep out and extravasate into the peritoneum, spread around, go mostly into the dependent areas, and through fluid and sliding surfaces, it can spread to all of the abdomen. So usually when the pain is initially at a localized place where the irritation is, the patient points to a certain place in the abdomen, but when it spreads, it gets worsened. There is usually all of the abdomen gets tender. There is pain all over the abdomen, and it is also uh, accompanied along with guarding, which is tense tightening of the abdominal muscles like a flat board, so that you can poke from the outside, and there can be minimal movement from the inside. It is an attempt of the body to reduce the pain sensation. What would be the clinical features of peritonitis? Of course, we have abdominal pain, which is worsened with movement. When the organs touch, when the fluid moves, when the inflamed surface glides over the other surfaces. So it results in, the first symptom is, and the most constant symptom is the pain. Abdominal pain, which may be localized or which may be generalized abdominal pain. The the and it is accompanied, usually accompanied by guarding and rigidity. What is guarding? You tense your abdominal muscles. The muscles of your tummy are tight and rigid, like a board. It is a body's response to contain the homeostasis. Homeostasis means internal environment of the body. Then we are okay. We have done about, and because if it's a pelvic accumulation, and the area of inflammation in the peritoneum is more in the pelvic area, then the pain would be more pronounced and marked when we do the rectal examination, which causes again irritation resulting in pain. And obviously, peritonitis is itis, infection leading inflammation, infection leading to inflammation. So there is bound to be pyrexia. Pyrexia is fever. And in usually extreme of ages, in extreme, in young and old and the frail, pyrexia can be disruptive as it may not be present in immunocompromised and very old patients. So you have to keep a high suspicion, level of suspicion in such cases. And due to there will be pyrexia, infection के क्या क्या होंगे, पेन हो रही है, गार्डिंग हो रही है, पीआर करेंगे उस पर भी पेन होगी, बुखार हो रहा है, और बुखार के साथ क्या होता है, टाइफाइड के अलावा यूजुअली ज़्यादा पायरेक्सिया जो होते हैं वो रेज पल्स के साथ होते हैं, पल्स रेट ज़्यादा हो जाएगा, बावल साउंड एब्सेंट हो जाएंगी, सारी गट इंट्रा पेरिटोनियम के अंदर पड़ी हुई है ना जितनी, तो उस गट की अगर पेरिटोनियम की इन्फ्लेमेशन होगी तो बावल वॉल भी ऑब्वियसली उसके अंदर उसके साथ ही इन टच है, तो वो भी इन्फ्लेम्ड हो जाएगी. एंड ड्यू टू दिस पेन एंड इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन,
the movement, the peristaltic movement of the gut is going to stop. So the stoppage of the gut movement would result in what? Stasis. Stasis से क्या होगा? Extra visit और ज़्यादा fluid हो सकता है gut से निकल के बाहर into the peritoneum. So there will be absent bowel sound, bowel movements रुक गई हैं. और अगर untreated रहे और ये चीज़ worsen हो जाए तो it results in a septic shock, which is a late feature. So we have now concluded what about peritoneum so far is where it comes from, like it mesoderm. What it does, lines the abdominal cavity. It has two layers, the outer one and the inner one. Outer being the visceral, inner being outer being the parietal, the inner being the visceral. ये हमने कर लिया. इसके रिफ्लेक्शंस कौन कौन से? ओमेंटम है, मेजेंट्री है, वो बाद में, इट्स अ सेपरेट टॉपिक. टुडे वी कन्फाइन आवरसेल्व्स टू द पेरिटोनियम ओनली. तो पेरिटोनियम हो गया, वो क्या हुआ, कहाँ से निकला, उसकी इरिटेशन क्या क्या चीज़ कर सकती है, क्या क्या चीज़ पेरिटोनाइटिस कॉज कर सकती है, पेरिटोनाइटिस के बाद उसके बाद क्या क्या पेशेंट आपके पास किस किस साइन सिम्टम्स के साथ आ सकता है, वो हमने कर दिया. साइन सिम्टम्स के साथ आ गया, बंदा आपके पास आ गया, पेट दर्द के साथ आ गया, आपने कहा पेरिटोनाइटिस उसे हो रहा है, आपने चेक कर लिया, गार्डिंग भी है, पेन भी है, फीवर भी है, पल्स भी इंक्रीज है, पहले पेन एक जगह पे थी, फिर पेन जनरलाइज भी पूरे पेट में हो गई है, मसल्स भी पेट के उसने टाइट किए हैं. अब क्या करोगे? आपको पता चल गया पेरिटोनाइटिस हो गया. What to do now? Obviously, you will do certain investigations to confirm your diagnosis of peritonitis. उसके लिए आप क्या करोगे? ब्लड टेस्ट करोगे सबसे पहले. तो उसमें और कंप्लीट ब्लड टेस्ट में क्या होगा? इन्फेक्शन है ना, या उधर है, या तो रेज ल्यूकोसाइट काउंट होगा, वाइट ब्लड सेल्स रेज हुए में होंगे. अगर एक्यूट पिक्चर होगी तो न्यूट्रोफिलिक और पॉलीमॉर्फ्स ज़्यादा होंगे. अगर क्रॉनिक पिक्चर होगी, क्रॉनिक पेरिटोनाइटिस ज़्यादा देर से चल रहा होगा तो लिम्फोसाइट्स वगैरह ज़्यादा होंगे. अगर ट्यूबरकुलस पेरिटोनाइटिस बिकॉज ऑफ ट्यूबरकुलस चल रहा होगा तो उसमें जाइंट लैंगरहैन सेल्स और वो जो ग्रैनुलोमास और केसिएशन और वो चीज़ें आपको ज़्यादा मिलेंगी. ठीक है, तो आपको ब्लड में आपको मिलेगा रेज्ड ल्यूकोसाइट काउंट. उसके बाद एक्सरे आप कराओगे एब्डोमेन का और चेस्ट का. चेस्ट का एक्सरे क्यों कराते हैं? तो पेरिटोनियम तो है ही एब्डोमिनल कैविटी में, लेकिन पेरिटोनियम जो है वो डायफ्राम की वो नीचे वाली सरफेस जो पेरिटोनियम एब्डोमिनल कैविटी के साथ है उसको भी तो लाइन कर रहा है ना. तो उसका उधर तक आपने इसका एक्सटेंड देखना है. तो खड़े होके आप कराते हैं, पेशेंट को खड़ा करके इरेक्ट पोजीशन में आप कराते हैं चेस्ट एक्सरे, ताकि अगर देखो कोई हॉलो स्ट्रक्चर परफोरेट होगा या फटेगा तो उसमें से हवा निकलेगी. पेरिटोनियम में नॉर्मली हवा नहीं होती, तो पानी नीचे जमा होता है, हवा पानी के ऊपर जमा होती है. बुलबुला पानी का, जितना पानी में से बुलबुला जो हवा का ऊपर आता है ना, तो हवा अगर आप पेशेंट को खड़ा करोगे ना तो हवा ऊपर चली जाएगी, पानी नीचे चला जाएगा. तो जो हवा है वो आपको डायफ्राम के नीचे नजर आएगी. नॉर्मली द एयर इज कंटेन्ड इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग. डायफ्राम के ऊपर होते हैं, हवा होती है, ब्लैक शेडोज होते हैं. नॉर्मली पेरिटोनियल कैविटी के अंदर हवा हॉलो स्ट्रक्चर्स में होती है सिर्फ. नॉर्मली बाइल वगैरह में भी नहीं होती है, गॉल ब्लैडर वगैरह में, इंटेस्टाइन में होती है. यस, उधर गैस होती है, लेकिन वो बाहर नहीं निकलती पेरिटोनियम में. तो अगर आपको फ्री एयर इन द पेरिटोनियम नजर आ जाए तो इसका मतलब है कि देयर इज परफोरेशन, या हवा किसी एयर कंटेनिंग ऑर्गन के फटने से आई है या बाहर से आई है. फॉर एग्जाम्पल स्टैब वुंड, बाहर से इतनी छुरा मारे अंदर पेरिटोनियम पर छुरा हो गई तो हवा तो अंदर आ गई ना. या डायफ्राम रप्चर हुई, लंग में से हवा लीक होकर लंग पैरेन्काइमा डैमेज हो, कहीं ना कहीं से तो हवा आई है ना, जो कि पेरिटोनियम में नहीं होनी चाहिए. तो इसको देखने के लिए हम चेस्ट रेडियोग्राफ कराते हैं इरेक्ट पोजीशन में, और लेटी हुई पोजीशन में हम एब्डोमेन का एक्सरे भी करा सकते हैं. उसमें हम क्या देखते हैं? एयर फ्लूइड लेवल्स खड़े में हमें नजर आ जाएंगे, और लेट को आपको नजर आ जाएगा एब्डोमेन इंटेस्टाइन की डिस्टेंशन. ठीक है, और ज़्यादा आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देते हैं सीटी, स्पायरल सीटी टोमोग्राफीज जो हैं. और अगर आपने ज़्यादा स्पेशली इन केस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस या कोई नास्टी कैंसर लाइक चीज़ सस्पेक्ट कर रहे हो तो फिर आप पेरिटोनियम में जो फ्लूइड है ना उसको अल्ट्रासाउंड गाइडेड बाहर से सुई डाल के अंदर से वो अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस में कि आप जहाँ फ्लूइड है वहाँ से आप फ्लूइड कलेक्ट कर लेते हो, और उसकी साइटोलॉजी करा के देख लेते हो कि उसमें कैंसर सेल्स तो नहीं है. उसमें अगर इन्फेक्शन इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं तो कौन से हैं? न्यूट्रोफिल्स हैं, जाइंट लैंगरहैन सेल्स हैं, एटिपिकल सेल्स हैं. तो आपको यू कैन गेट एन आइडिया एज टू व्हाट द डिजीज अंडरलाइंग डिजीज इज. एंड देन ये मैं आपको बता रहा था, दिस इज व्हाट
एक्सरे जब भी देखो ना, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि व्हाट इज इट। दिस इज एक्सरे चेस्ट। नाउ विच व्यू इज इट। इसमें तो नहीं पता चला, लेकिन आपने पहले देखना होता है कि नाम, डेट, ताकि आप उसी बंदे का एक्सरे देख रहे हो, किसी और का भी तो उठा के आ सकते हैं ना। वुड यू नो तो कंफर्म इट फर्स्ट के हुज एक्सरे इट इज, किस चीज़ का एक्सरे है। और फिर या बाहर से अंदर आना शुरू हो जाए, अंदर से बाहर जाना शुरू हो जाए, ताकि एक एक चीज़ पे आप कमेंट करते जाओ, कुछ मिस ना हो। इस केस में वेलकमिंग बैक टू द टॉपिक, हम देखते हैं कि ये आप देख रहे हो नीचे ब्लैक और वाइट की जो बाउंड्री बन रही है बिल्कुल नीचे, दिस इज योर डायाफ्राम। ये जो ट्विस्ट सेंटर एक गोल सा जा रहा है ना, दिस इज द डायाफ्राम। डायाफ्राम इज अ पार्टीशन बिटवीन द चेस्ट एंड द एब्डोमेन। ठीक है, चेस्ट कैविटी की लाइनिंग जो है वो प्लूरल है, स्पेस है। एब्डोमिनल कैविटी की जो लाइनिंग है जो हम पढ़ रहे हैं अभी, वो पेरिटोनियल स्पेस है। इन दोनों के दरम्यान में डायाफ्राम है। यूजुअली काली हवा जो वाइट के ऊपर होनी चाहिए। आप इस तस्वीर में राइट साइड पे देखो, एक बड़ा सा काले डायफ्राम के नीचे भी बहुत बड़ा काला है। बड़ा सारा वो जो काला है ना, वो स्टमक के अंदर का बबल है। स्टमक के अंदर हवा होती है, इट्स नॉर्मल। बट कमिंग टू द अदर साइड, लेवर वाली साइड पे देखो, जो भी आपकी स्क्रीन में आपको लेफ्ट पे नजर आ रहा है, वैसे राइट पे होता है, अपोजिट देख रहे होते हैं ना एक्सरे में। तो डायाफ्राम जो ऊपर देख रहे हो आप, और नीचे लेवर का वो जो व्हाइट शेड नीचे लेवर का है, ऊपर एक व्हाइट पतली सी लाइन जा रही है, वो डायाफ्राम है, और उन दोनों के दरमियान में भी हवा है काली काली। दिस इज अब नॉर्मल। यहाँ गट तो नहीं जा रही होती ना, यहाँ इंटेस्टाइन तो नहीं कहीं पड़ी हुई, वो तो नीचे है ना एब्डोमेन में। तो ये हवा कहाँ से आ गई? जो ना लंग्स में है, ना जीआईटी के अंदर है, ना कहीं है जिसने स्टमक बबल की, ये तो बाहर फ्री फेरी है। तो इसका क्या मतलब है? कोई एयर कंटेनिंग विस्कस जो है परफोरेट हो गया है, या बाहर से कोई वुंड है जो अंदर हवा ले आए। तो ये आ गया। अगला हम देख रहे हैं, दोनों पिक्चर्स हैं किस चीज़ की? एक्सरे एब्डोमन। एक्सरे एब्डोमन है, एंट्रोपोस्टीरियर व्यू है। और इन दोनों को मैं देख के कह सकता हूँ, इन दोनों एक्सरेज को, कि ये खड़ी पोजीशन में किए गए, खड़े होके किए गए हैं। क्यों? अगेन वही बात, हवा ऊपर जाती है, पानी नीचे आता है। लेफ्ट साइड पे जो आपके स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे जो आपके एक्सरे है, उसमें आप देख रहे हो एब्डोमेन की राइट साइड तो लेफ्ट, आप मिरर इमेज देख रहे होते हो ना, तो आप जो देख रहे हो उसका लेफ्ट राइट है, राइट लेफ्ट है। तो आर जहाँ लिखा हुआ है, आर के की बजाय जो लेफ्ट साइड है, उधर आप देख रहे हो बड़े बड़े मोटे मोटे इंटेस्टाइन के लूप्स नीचे गए हुए हैं, और ऐसे लग रहा है कि सिक्के के ऊपर सिक्का रखा हुआ है, स्टैकिंग ऑफ कॉइन्स हुए हुए हैं। ये होती हैं वेल्वुली कॉन्वेटेंटीज, जो जेजुनम में होती हैं। जेजुनम यूजुअली लेफ्ट साइड पे होता है, ज़्यादा पेरिफेरली प्लेस्ड होता है, ऊपर लेफ्ट और नीचे लेफ्ट। ठीक है, और इसके ऊपर इसमें सिक्के के ऊपर सिक्का, सिक्के के ऊपर सिक्का, छोटी 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 लाइनें स्टैकिंग हुई हुई है। दिस इज अ फीचर ऑफ वेल्वुलर कॉन्वेटेंटीज एंड दिस इज अ फीचर ऑफ जेजुनम। वेट ऑन द अदर एक्सरे, उधर भी आप देख रहे हो एयर फ्लूइड लेवल है, एकदम नीचे सीधी सीधी लाइनें पड़ी हुई, ऊपर काली काली हवा, नीचे सीधी सीधी लाइन है, उसके नीचे वाइट, नीचे वाइट पानी, काली हवा, और जहाँ वो सीधी लाइन बन रही है, इसका मतलब पेशेंट खड़ा हुआ है, क्योंकि हवा ऊपर चली गई, जहाँ जहाँ गट लूप्स के अंदर वहाँ जमा हो गई। और इस वाले एक्सरे में ना, जो राइट साइड वाला एक्सरे है, इसमें आप देखो लेफ्ट में तो हमें इसने वो सिक्के के ऊपर सिक्का चढ़ा हुआ, स्टैकिंग ऑफ कॉइन्स नजर आ के टाइप नजर आ रहा था। इसके अंदर हमें कोई मार्किंग्स नहीं नजर आ रही। ये जो कैरेक्टरलेस इसको कहते हैं, इसके अंदर कोई मार्किंग नहीं होती। दिस इज द आइलियम। ठीक है, आइलियम आपका यूजुअली आपका राइट आइलियम फॉसा में आपको ज्यादा नजर आता है, राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन में ज्यादा नजर आता है इन जनरल वेल। लेकिन असल डिफरेंशिएटिंग फीचर इसका बीइंग कैरेक्टरलेस और उसका बीइंग वेल्वुलर कॉन्वेटेंटीज है। ठीक है, तो ये एक्सरे इन्वेस्टिगेशन हो गई आपकी जनाब। और अब इन्वेस्टिगेशन भी कर लिया, आपको उसमें प्रूव हो गया, सीबीसी कराया, ल्यूकोसाइटोसिस आ गया, एक्सरे कराया, उसमें एयर अंदर डायफ्राम आ गई चेस्ट के अंदर इस एक्सरे में। एब्डोमिनल एक्सरे कराया तो उसमें जी आपको मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल्स आ गई, जिसका मतलब है कि क्या इंटेस्टाइन्स की अपनी पेरिस्टाल्सिस रुकी हुई है, फ्लूइड और हवा आगे प्रोपेगेट नहीं हो रहे, जो जहाँ रुके में वहीं रुके, एयर फ्लूइड लेवल्स बनाना शुरू हो गए। So you have confirmed the diagnosis of intestinal obstruction or intestinal perforation and which is leading to peritonitis. अब क्या करोगे? Next step is treatment. You have to treat the patient. ये this is a serious condition. तो दो थी, एक जनरल केयर ऑफ द पेशेंट क्या करोगे? इंटेस्टाइन्स रुकी नहीं है। इंटेस्टाइन्स रुकने का क्या मतलब हुआ? एक तो इंटेस्टाइनल कंटेंट्स जो है वो अंदर ही पड़े हुए हैं,
तो या वो उल्टी आ रही होगी, फिर से ऊपर से कुछ खाएगा, वैसे कॉन्स्टिपेशन हुई हुई होगी, सारा जो है वो सारा विद इन द इंटेस्टाइन होगा, और इंटेस्टाइन परफोरेट हुई है, तो ये सारा जो सॉइलेज एंड लीकेज ऑफ फीकल मैटर इनटू द पेरिटोनियल स्पेस हो रहा होगा। तो उल्टियाँ आके ना खाने की वजह से, एक्स्ट्राविजेशन की वजह से पेशेंट विल बी डिहाइड्रेटेड, he will or she will be dehydrated, he or she will be having an imbalance of electrolytes and nutritional imbalance. He or she may have low blood pressure due to dehydration, low sugar level, hypoglycemia due to not eating anything and lack of absorption. So the first step is large bore IV lines, लेकिन आप correction of fluid and electrolytes करेंगे. Electrolytes क्योंकि आपकी cardiac conduction और बहुत सारी चीज़ों के साथ भी interfere कर सकते हैं, तो it's important to correct the fluids और इलेक्ट्रोलाइट्स। फ्लूइड्स के आपके करेक्शन का आइडिया आपको हो जाता है यूरिनरी आउटपुट से कि आप सही फ्लूइड दे रहे हो नहीं दे रहे हो, ठीक है। अब इंटेस्टाइन की मूवमेंट रुकी भी, इंटेस्टाइन इज अंडर स्ट्रेस, तो आप नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डाल दोगे, नाक के थ्रू नाली डालोगे जो मैदे तक अंदर इंटेस्टाइन तक चली जाएगी, स्टमक तक। जिससे क्या होगा, अगर कोई उल्टी आनी है उनकी बजाय ना, जो फ्लूइड जो बाहर आना होगा वो उस ट्यूब के जरिए बाहर आ जाएगा, जो कि बैग के साथ कनेक्टेड होगी, आप उसको मेजर कर सकोगे, आप उसको देख सकोगे किस किस्म का फ्लूइड है। और दूसरा ये है कि अंदर से आपकी इंटेस्टाइन जो है ना वो डीकम्प्रेस होगी, जिससे आपको पेन पे रिलीफ मिलेगा, डिस्टेंशन कम होगी। पॉलिस कैथेटर डाल दोगे अगेन टू मेजर द यूरिनरी आउटपुट, क्योंकि आपने सबसे पहले जो किया ना करेक्शन ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, उसका सबसे बड़ा इंडिकेटर जो है कि आप सही फ्लूइड्स दे रहे हो या ज़्यादा या कम तो नहीं दे रहे हो, दैट इज़ यूरिनरी आउटपुट। अगर सिंगल पैरामीटर में आपको कहूँ ना कि क्या है हाइड्रेशन का स्टेटस को पता करने का, दैट इज यूरिन आउटपुट। अदरवाइज तो वो भी हमने आपने पढ़ा होगा या पढ़ना होगा कि स्किन कोल्ड एंड क्लैमी हो जाती है, स्वेटी हो जाती है, रिंकलिंग हो जाती है, संकन आइज हो जाती है, फीबल पल्स हो जाती है, फ्लूइड वॉल्यूम, बॉडी में सर्कुलेटिंग वॉल्यूम कम होता है, तो बॉडी कंपनसेट करने के लिए जोर से दिल धड़कना शुरू हो जाता है, वो सारे होते हैं। लेकिन सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू चेक द फ्लूइड कि आप फ्लूइड पूरे दे रहे हैं या कम दे रहे हैं या ज़्यादा दे रहे हैं, दैट इज़ योर यूरिनरी आउटपुट। ये हमने कर लिया सारा कुछ। उसके बाद हमने आई टेस्ट चल रहा है, इन्फेक्शन चल रहा है, तो ऑब्वियसली अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक दोगे। पहले आप जब पेशेंट आपने डायग्नोज किया तो आप उसको जो आप सस्पेक्ट कर रहे हो उस हिसाब से ब्रॉड स्पेक्ट्रम, जो ज़्यादा ऑर्गेनिज्म को सस्पेक्टेड ऑर्गेनिज्म कवर कर ले वो एंटीबायोटिक शुरू करा लेते हो। जो आपने सैंपल ले लिया है पेरिटोनियल फ्लूइड, जो हमने अल्ट्रासाउंड गाइडेड की बात की थी, उसकी 2-3 दिन में रिपोर्ट आ जाती है, उसमें ग्रो करके देखे थे कौन सा ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है और उसके खिलाफ कौन सी एंटीबायोटिक ज़्यादा इफेक्टिव है। तो वो जब रिपोर्ट आ जाती है फिर आप अपनी एंटीबायोटिक को, यू कैन टेलर योर एंटीबायोटिक अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट यू रिसीव, एंड you can either increase or decrease the dosage or you can change the antibiotic accordingly। और साथ साथ बुखार भी चल रहा है, बुखार भी आपने देना, एंटीपायरेटिक्स भी देनी है। पेरिटोनियम में बता रहे थे कि पेन हो रही है पेशेंट को, मुसलसल गार्डिंग हुई है, सारा कुछ हुआ है। गार्डिंग और स्प्लिंट की वजह से क्या होता है, वो पेशेंट डायफ्राम भी कम मूव कर रहा होता है, क्योंकि उसके मैंने बताया ना नीचे की तरफ पेरिटोनियम लगा हुआ है, तो वो भी उस सांस लेने से, गहरा सांस लेने से या पूरा सांस खींचने से अंदर उसको भी दर्द होती है। तो पेशेंट यूजुअली स्प्लिंट्स हिज डायफ्राम आल्सो, जिसकी वजह से शैलो ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है, ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत पड़ सकती है, एनाल्जेसिया देना पड़ता है ताकि पेन ना हो, ठीक है। और वाइटल सिस्टम को सपोर्ट देना पड़ता है। बाज़ दफ़ा आपके डिहाइड्रेशन और की वजह से इट कैन इफेक्ट एनीथिंग, मल्टी ऑर्गन फेलियर में इवन जा सकता है, ठीक है। और फिर जाहिर सी बात है, अगर यही पेरिटोनाइटिस इंटेस्टाइन के कहीं से फटने की वजह से हुआ या बाहर से कहीं से जख्म की वजह से हुआ है, गन शॉट वुंड, स्टैब वुंड, कोई और चीज़, तो देन यू हैव टू गो इन एंड ऑपरेट। जहाँ है उसको डिपेंडिंग कि आपने काटना है, जोड़ना है, काट के बाहर निकालना है, क्या करना है, देन यू हैव टू गो सर्जिकली इन। ओके, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम पेरिटोनाइटिस? जब भी इन्फेक्शन या ज़ख्म आप जिस्म पे देखो, चोट लगती है या इन्फेक्शन होता है, एब्सेस बनती है, छाला बनता है, जब भी वो हील करता है तो वहाँ स्कारिंग होती है, टिश्यू हीलिंग होती है। टिश्यू हीलिंग में फाइब्रो ब्लास्ट एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से कोलेजन और फाइब्रिन की डेपोजिशन होती है, फिर मैचुरेशन ऑफ कोलेजन होती है, विच रिजल्ट्स इन स्कार फॉर्मेशन। इसकी वजह से पेरिटोनियम बड़ी पतली सी सिंगल लेयर ऑफ पॉलीगोनल सेल्स है ना, हमने कहा था, तो इनकी दोनों लेयर जो पैराइटल और वेस्टल होती है ना, इनके आपस में एडिशन बनने के चांसेस हो जाते हैं। दूसरी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है इरिटेशन ऑफ पेरिटोनियम की वजह से?
पेरिस्टालसिस रुक जाती है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ब्लोटिंग, गैसियस डिस्टेंशन, ये सब कुछ हो जाता है। ठीक है। रेजिडुअल एब्सेस, अगर आप सारी कुछ धा भी दो ना पेरिटोनियल कैविटी को अच्छी तरह, तो उसके बाद भी सिर्फ हमने नीचे देखा जहाँ जहाँ वो जो कर्व्स हैं और कुछ ऐसी डिपेंडेंट जगह हैं वहाँ जाके थोड़ा बहुत फ्लूइड रह जाता है, जो कि नॉर्मली पेरिटोनियम एब्जॉर्ब कर लेता है। इट इज़ अ वेरी गुड एब्जॉर्प्टिव सरफेस। आपने देखा होगा कि जब पेरिटोनियल डायलिसिस, लोगों का जो डायलिसिस होता है इमरजेंसी में, तो एक्सचेंज ऑफ जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह पेरिटोनियम यूज हो रहा होता है आपका, और इसमें 2-2 लीटर 4-4 लीटर का पानी डाल के एक्सचेंज कर रहे होते हैं। इट्स और टॉक्सिक एजेंट्स इसमें आ रहे होते हैं, यूरिया, नाइट्रोजन, और ये चीज़ें पेरिटोनियम में आ रही होती हैं। और किडनी का काम आप पेरिटोनियल लेयर से ले रहे होते हैं एज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इट्स बिग सरफेस, एब्जॉर्प्टिव सरफेस, तो उसमें रेजिडुअल एब्सेस बनने का चांस रह जाता है। पोर्टल पाइमिया कहीं भी हो तो फिर अगर यही इन्फेक्शन बॉडी में ट्रैवल कर जाए तो इट कैन रिजल्ट इन सेप्टिसीमिया, जनरलाइज्ड फ्रैंक सेप्टिसीमिया। पेरिटोनाइटिस हमने बात कर ली, बैक्टीरियल होता है ज़्यादातर, और तरह के भी पेरिटोनाइटिस, केमिकल भी होता है, रेडिएशन से भी हो सकता है, बाहर से चोट लगे भी हो सकता है। ठीक है। तो दूसरे और जो पेरिटोनाइटिस के कॉमन फैक्टर्स है ना, मे बी नॉट इन द फर्स्ट वर्ल्ड बट in our part of the world and in most of the third world countries, tuberculosis is still one of the causes of peritonitis. Tuberculosis कहीं भी कर सकता है, लंग में, इंटेस्टिन्स में, पेरिटोनियम में, हड्डियों में, CSF में, इट कैन गो एनीवेयर। तो इंटेस्टिन में होता है, जो पेरिटोनियम में होता है ना, उसकी जगह 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 बीडिंग हो जाती है, छोटे 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 वाइट स्पिक्यूल्स लगे हुए होते हैं, सपोनिफिकेशन हो जाती है। वो सॉरी पेंक्रेटाइटिस में होती है, इसके अंदर ना छोटे 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 इसके अंदर वो बन जाते हैं, आपको नोड्यूल्स नजर आ रहे होते हैं। बाई की वजह से पेरिटोनाइटिस, वो केमिकल पेरिटोनाइटिस की एग्जांपल होती है, एंड इट इज कॉल्ड बिलियरी पेरिटोनाइटिस। न्यूमोकॉकल पेरिटोनाइटिस हो सकता है, मिकोनियम, जब इन्फेंट, जब बच्चा बॉर्न होता है तो यूजुअली मिकोनियम जो होता है एब्जॉर्ब हो जाता है, और थोड़ा बहुत जो होता है जो रह गया होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ वो एक्सक्रीट हो जाता है। लेकिन अगर वो अंदर पेरिटोनियल कैविटी में ट्रैप रह जाए, डेवलपमेंटल जब स्टेजेस से बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मंथ में इंटर यूट्राइन लाइफ के मंथ में गुजरा होता है, तो वो म्यूकोनियम कम आहिस्ता आहिस्ता होता जाता है। लेकिन अगर किसी बच्चे को ट्रैप हो जाए इनटू द पेरिटोनियम, देन इट कैन रिजल्ट इन पेरिटोनाइटिस। एंड पोस्ट ऑपरेटिवली हमने बात की, हो सकता है लीकेज, स्पिलेज, धोना, कोई चीज़ किया उसमें थोड़ा बहुत हुआ तो उसकी वजह से भी हो सकता है। पीरियोडिक पेरिटोनाइटिस है, मेडिटेरेनियन हे फीवर, दिस इज नॉट टू कॉमन इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन कहीं होता है। विल बी डिस्कसिंग दैट, टचिंग इट लेटर इन द स्लाइड्स। Then comes tubercular peritonitis, acute tuberculosis हो सकती है, chronic tuberculosis हो सकती है, it can be associated, it's associated with dominant pain, usually night sweats होते हैं, malaise होती है, weight loss हो रहा होता है, और इसमें exudation of fluid into the peritoneal cavity होती है, जिसकी वजह से बंदा बिल्कुल बाजू बहुत पतले, श्रिवल्ड, लेकिन पेट जो होता है वो मैल न्यूट्रिशन लोगों की तरह बहुत बड़ा और प्रोट्रूबेंट पेट होता है, क्योंकि उसके अंदर पानी भरा हुआ होता है। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एसाइटीज। फिर उसके बाद केसिएशन हो सकती है, जो हम कहते हैं ना कि ग्रैनुलोमा गमास फॉर्मेशन, केसिएशन नेक्रोसिस इज अ फीचर ऑफ, स्पेसिफिक फीचर ऑफ इन्फेक्शन और एब्सेस फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। एंड इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन में रिस्पॉन्ड टू एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट्स में हो सकती है, सर्जरी चाहिए होती है अगर मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो जाए या कोई ऐसी इमरजेंसी डेवलप है, जिसकी हम बाद में बात करते हैं। बिलियरी पेरिटोनाइटिस मैंने आपको बता दिया, लीकेज की वजह से होता है। और न्यूमोकॉकल पेरिटोनाइटिस जो होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम बच्चों में ज़्यादातर कॉमन होता है, छोटी एज के बच्चों में होता है। गला खराब हो, असेंडिंग न्यूमोकॉकल इन्फेक्शन फ्रॉम वजाइना एंड फैलोपियन ट्यूब्स इन द फीमेल्स हो सकता है। लड़कों में टॉन्सिलाइटिस, हेमेटोजेनस स्प्रेड फ्रॉम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस कैन लीड टू प्राइमरी न्यूमोकॉकल पेरिटोनाइटिस, व्हिच इज अ वेरिएंट ऑफ पेरिटोनाइटिस। एंड देन क्लिनिकल फीचर्स में वही मैंने आपको बता चुका हूँ, पेन इन लोअर एब्डोमेन, डायरिया, और वो भी हो सकता है। साइंस ऑफ पेरिटोनियल इरिटेशन हो सकते हैं। और न्यूमोकोकल पेरिटोनाइटिस में ना, अपेंडिसाइटिस में भी पेन में पेट में दर्द होती है, पेरिटोनियल इरिटेशन की वजह से होती है, लेकिन उसमें 30,000 नॉर्मली 11,000 तक होता है आपका ल्यूकोसाइट काउंट। तो पेरिटोनाइटिस में अगर ये वाला पेरिटोनाइटिस हो जिसकी हम बात कर रहे हैं, विच इज न्यूमोकोकल पेरिटोनाइटिस, तो इसमें ना 30,000 से ज़्यादा हुआ होता है TLC काउंट, और अपेंडिक्स में यूजुअली 20 तक ही रहता है, ऐसे ज़्यादा नहीं जाता। और इसमें पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स होते हैं,
न्यूट्रोफिल्स यानी ज़्यादा होते हैं, जिसका मतलब है कि एक्यूट इन्फेक्शन है और ये ट्यूबरकुलस वगैरह नहीं है और ये एक्यूट है, जिसकी वजह से न्यूट्रोफिल्स आए हुए हैं और ये इतने ज़्यादा ना, तो इसलिए ये पेरिटोनाइटिस अपेंडिसाइटिस की वजह से होना अनलाइकली है। मिकोनियम वो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मंथ में जैसे जैसे इंट्रायूट्राइन लाइफ में बेबी ग्रो करता जाता है, मिकोनियम कम होता जाता है कि फोर्थ मंथ ऑफ आफ्टर फोर्थ मंथ ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ इट रिमेन्स अप टू द कोलन ओनली, और वो एट द टाइम ऑफ बर्थ भी जो होता है ना वो निकल जाता है। लेकिन अगर इस्कीमिया हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, ब्लड सप्लाई कम हो जाए, ऑक्सीजनेशन कम हो जाए, मेजेंट्री अपने ऊपर ट्विस्ट हो जाए, इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन के एट्रीजिया मीन्स उसकी हाइपो डेवलपमेंट, वो पूरी तरह डेवलप ना हो सके, मिकोनियम जो होता है वो बहुत ज़्यादा थिक विस्केड हो जाए, अगर उसके प्लग्स बन जाए, अंदर इंटेस्टाइन एक दूसरे के अंदर हर्निएट कर जाए। हर्शस्प्रिंग डिजीज एक होती है जिसके अंदर इंटेस्टाइन की मूवमेंट बात कर रहे थे ना, पेरिस्टालसिस होती है, वो नर्व फ्लेक्सेस रन कर रहा होता है ना विद इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, वो अगर एब्सेंट हो या कुछ हो तो उसकी मूवमेंट्स नहीं होती, इसको हर्शस्प्रिंग डिजीज कहते हैं, उसकी वजह से ये हो सकता है। एट्रीजिया उन्होंने बता दिया, टॉर्जन, फ्लोपियन ट्यूब की, ये सारी चीज़ें, सिस्टिक फाइब्रोसिस जिसमें एपिथेलियल लाइनिंग, सिलिया, मोटिलिटी जो होती है उनकी वो अफेक्टेड होती है, तो ऑल दीज थिंग्स कैन रिजल्ट इन व्हाट, मिकोनियम पेरिटोनाइटिस। ठीक है। एंड क्लिनिकल फीचर्स ऑफ पेरिटोनाइटिस में सॉरी एसाइटीज, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड में क्या होगा, मैसिव डिस्टेंशन होगी इसमें मिकोनियम के अंदर, बेबी वो जो बॉर्न होगा उसका टेंस एब्डोमेन होगा, उसे वॉमिटिंग हो रही होगी, persistent वॉमिटिंग हो रही होगी, और जो पैदा होती है, जो बाकी मैंने आपको बताया ना थोड़ा बहुत रह गया था मिकोनियम, वो भी पास कर रहे थे बेबी, वो फेलियर टू पास द मिकोनियम होगा। देयर विल बी फ्लूइड थ्रिल पॉजिटिव, जब पानी होता है तो छलकता है ना, तो फ्लूइड थ्रिल इज bedside test we perform to elicit that free fluid in the peritoneal cavity। ये जो फ्री फ्लूइड पेरिटोनियम में भरा हुआ है, जब बताते हैं ना 2 मीटर स्क्वायर तक उसकी कैपेसिटी है, उसके अंदर फ्लूइड बहुत ज़्यादा भर सकता है ना, तो वो जो भरेगा तो आप पेशेंट को इधर उधर उछालोगे, पानी को उछालोगे, तो वो जो आप इलिसिट करते हैं ना चीज़, दिस इज कॉल्ड फ्लूइड थ्रिल। ये एग्जांपल है मिकोनियम कि ये देखो ऊपर लंग्स छोटे से ऊपर प्रेस हो गए हैं और सारा एब्डोमेन जो है डिस्टेंस मोटा हुआ है और उसके अंदर फ्री फ्लूइड फिर है वाइट वाइट। तो इसकी प्रोग्नोसिस पुअर है, अगर ऑब्स्ट्रक्शन कंप्लीट हो, बेटर ना पास कर रहा हो तो आउटकम पुअर होती है, लेकिन अगर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ना हो तो समहाउ इसकी आउटकम बेहतर होती है। और इसका इलाज क्या होता है, खोल के अगर वो जहाँ भी ऑब्स्ट्रक्शन है, जहाँ भी प्लग है, उसको गो इन, रिमूव द प्रॉब्लम, रिकैनलाइज, रिस्टोर द कॉन्टिन्यूटी एंड कम आउट। ठीक है। फेमिलियर मेडिटेरेनियन फीवर 2 से 3 दिन रहता है, यूजुअली लोगों को बार बार होता रहता है, और जॉइंट पेन्स और अटैक्स और चेस्ट प्रॉब्लम्स के साथ एसोसिएटेड ज़्यादा होता है। 3-4 दिन रहता है, ये सारी दर्दें होती हैं, सारा कुछ होता है, उसके बाद ठीक हो जाता है खुद ही, और उसके बाद ओनली टू रीकर एट रेगुलर इंटरवल्स। और सर्जरी की सिर्फ तब जरूरत पड़ती है कि अगर ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाए जिसकी वजह से कोई गॉल ब्लैडर या स्प्लीन या कोई स्ट्रक्चर का डैमेज हो जाए। कॉल्चिसिन विच इज़ अ डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग इम्यून रिस्पॉन्स को करती है आपके modify it is usually prescribed to prevent acute and recurrent attacks of this Mediterranean fever. So I guess this should be enough. uh, I wish I could have delivered the lecture in person, when I could have uh, we could have had a more interactive lecture. But take home message for peritoneum is, it is difficult to understand the anatomy, but if you understand the anatomy of the peritoneum, your life will be much easier. क्योंकि ट्विस्टिंग, टर्निंग, इंट्रा एब्डोमिनल स्ट्रक्चर, मेसोडर्मल इन ओरिजिन, आपने बस ये याद रखना है इसका ओरिजिन, इसकी ये क्या होता है, इसकी कैपेसिटी क्या होती है, इसकी 2 लाइनिंग होती हैं, इसके अंदर क्या क्या होता है, और इसके अंदर इन्फेक्शन हो तो कहाँ कहाँ से आ सकता है, इसके अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो तो कहाँ कहाँ से आ सकता है, और इसका क्या काम है। दिस इज अ पुलिसमैन, और जो ओमेंटम है दैट इज अ पुलिसमैन ऑफ द बॉडी विच इज ऑल्सो मेसोडर्मल इन ओरिजिन। Thank you very much. It was good. I don't know, talking to you, I would say. Like, and I don't know if you were able to listen to me because I couldn't hear or listen to any one of you. So good luck, study hard, and be good. Okay, ji. Allah Hafiz.